Okay, let's come to this next type of problem in a combination of resistance, that is the infinite ladder problem. मतलब कैसे कोई भी एक आपको ladder दी हुई होती है, ठीक है. So how to solve out this type of problem? So we have to use the one special method to solve this problem. Okay, let's we have to understand one simple case. If you have this type of condition is given to you, मतलब number of resistance R is given for infinite times. Then what is this equivalence resistance? So equivalence resistance is infinite R means actually NR है ना, बट यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो आंसर क्या होगा इनफाइनाइट. ऐसा ही कुछ अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन. मतलब अगर इनफाइनाइट आर में आप एक रेजिस्टेंस, आप ऐसा मान लो कि ये जो इनफाइनाइट पॉइंट है ए और बी है दोनों साइड, ठीक है, ए और बी. तो ए और बी का अभी रेजिस्टेंस कितना हुआ, इनफाइनाइट आर हुआ. तो मतलब आप उसमें एक रेजिस्टेंस ऐड करते हो तो फिर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता है. So whenever this type of infinite structure is given to you, you just add one this type of symmetrical loop, or you just remove one loop from the circuit, then equivalence resistance does not change. So here we have to finding out the equivalence resistance of the circuit. That is a problem. Example 3.21 from the textbook. Okay, here what we have to find here, we have to find here equivalence resistance and the current pass through it. Equivalence resistance and current pass through the battery. What is this battery given to us? 12 volt battery is connected between these two points with the internal resistance 0.5 ohm. Okay, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी बैटरी आप ऐसा मान लो, this is our battery. Okay, EMF and internal resistance. But first you think about this circuit only this circuit. Then you just find the symmetrical loop. See, if you consider the loop, then 1 1 1 1 1 1 1 1 1 means here this is the symmetry. This one loop is like this, second loop, third loop, similar here, fourth loop, fifth loop. See, that's infinite times. Okay, so this is our symmetry. So you consider the equivalence resistance between A and B is supposed to be X. आप ऐसा मान के चलो कि A और B का equivalence resistance कितना है. So here आप consider equivalence is equal to what, X. Suppose equivalence resistance between A and B is what, R equivalence is equal to X. Okay, तो फिर आप एक लूप को रख के बाकी सब लूप की जगह X रख सकते हैं, है ना. मैंने यहाँ पे बोला एक रेजिस्टेंस आप ऐड करते हो या फिर एक रेजिस्टेंस आप उसमें से निकाल देते हो तो फिर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. सिमिलरली आप पूरा नेटवर्क में से, अब पूरी नेटवर्क की जगह पे आपको क्या रखना है, X रखना है. यू जस्ट रिप्लेस द होल नेटवर्क बाय द R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू X. ओके, तो आप एक इसमें सिमेट्रिकल लूप फाइंड करो. तो ऐसी सिमेट्रिकल लूप है तो आप इस सिमेट्रिकल लूप को यहां से ब्रेक कर दो. जहां पे भी सिमेट्री है वहीं से ब्रेक करना है. You just break the circuit from means you just taking a one loop as it is and the remaining whole circuit is replaced by a single one. Okay, यहाँ पे आप मान लो कि पॉइंट C and पॉइंट D है. ओके, आप एक लूप रखते हो या फिर नहीं रखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनफाइनाइट लैडर है. तो इस होल नेटवर्क जो है उसको किससे रिप्लेस करना है, आर इक्विवेलेंस है. तो इसकी इक्विवेलेंस सर्किट कैसी हो जाएगी, देखो यहाँ पे वही समझना था, हम सिर्फ इक्विवेलेंस सर्किट ही लेते हैं उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है. तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए पॉइंट से यहाँ पे बी पॉइंट से उसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना है, एक्स. उसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना है, एक्स, जैसे हमने काउंट किया हो, ठीक है. 1 1 1 so 1 ohm 1 ohm 1 ohm ऐसा हुआ. Now this whole network, this point is what, C, and this point is what, this whole network is replaced by the R equivalence. So in this place we just put the one value, and what is this, that is the R equivalence is equal to what, X. मतलब यहाँ पे X रेजिस्टेंस आप ऐसे लिख सकते हो. तो A और B का इक्विवेलेंस के इक्वेशंस अब आप सॉल्व कर सकते हो. ये दोनों पैरेलल में हुए, उसके बाद वो सीरीज में हुए, दैट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंस. हियर दिस टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल. तो पैरेलल का इक्वेशन हमेशा ऑलवेज क्या रहता है, देखो पैरेलल का इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो फिर इन दोनों के लिए आप पैरेलल का इक्वेशन लिखो.
तो पैरेलल का इक्वेशन क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या होगा, सो इट्स रेजिस्टेंस x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो अगर x इसका इक्वेशन रेजिस्टेंस है, 1 इसका रेजिस्टेंस है, तो x इंटू 1, ओके मैंने ये इक्वेशन यूज किया है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसा ही है। कोई दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट किए हुए तो आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। सो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1। सो दिस होल नेटवर्क इज नाउ रिप्लेस्ड बाय, दिस इज A, here it is B. Now 1 ohm and this one is replaced by this, okay, so 1 ohm, here it is 1 ohm, and this one is what, between C and D, actually this point is C and this point is C, so what is the resistance between C and D, that's a x upon x plus 1, देखो, so this one is what actually x upon x plus 1. So now for a resistance between A and B, that is equal to the three resistance are in series. The three resistance are in series. So let's write this answer of this situation. Okay. So equivalence resistance between A and B. Equivalence resistance between A and B. अगर A and B का resistance चाहिए तो फिर RAB is equal to, these three resistance are in series. These three resistance are in series. So 1 plus this one plus this one. So 1 plus x upon x plus 1 plus this one 1. So आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 plus x upon x plus 1. बट RAB क्या है, आपने RAB की जगह पे क्या काउंट किया, देखो RAB मीन्स यू जस्ट रिप्लेस्ड बाय R इक्विवेलेंस x। RAB क्या है, x है, देखो RAB आपने क्या काउंट किया, वो x है, तो यहाँ पे x रख दो, तो आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस x अपॉन x प्लस 1। इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो फिर आंसर क्या होगा, x प्लस 1 को यहाँ पे लेके आओ, तो x इंटू x प्लस 1 है ना, x into x plus 1 is equal to this x plus 1 multiply here, so 2 into x plus 1 plus x, रेडी। यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आपका आंसर फाइनल क्या होगा, देखो this one is what, x into x, so x square plus x, right hand side 2x plus 2 plus x, so x and x cancel out, so simplify this relation, so x square minus 2x minus 2 is equal to 0. Now if you solve this quadratic equation, then you get the final answer. Okay, इसको solve करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सिंपल है, आप इसमें quadratic equation का थ्योरम यूज करो। सो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -2 है, c इज इक्वल टू -2 है, तो x क्या हो जाएगा, -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, सो पुट दिस वैल्यू, व्हाट यू गेट, सो -b, सो माइनस माइनस प्लस, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, सो -2 का स्क्वायर 4 -4 a 1 है, c -2, दैट इज -2 अपॉन 2 इंटू a 1 है फिर से, तो आंसर क्या होगा, देखो माइनस माइनस प्लस 4 to 8 प्लस 4 12, सो आंसर हुआ 2 प्लस और माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2, सो 12 मीन्स 4 3 जा, 12 मीन्स व्हाट 4 3 जा, अगर 4 इसमें से बाहर आया तो 2 हो जाएगा, तो फिर आंसर क्या होगा 2 प्लस और माइनस √2√3 अपॉन 2, सो 2 कैंसिल हो गया, तो x की जगह पे पॉसिबल आंसर हुआ 1 प्लस और माइनस √3। ओके, बट आउट ऑफ दिस माइनस इज नॉट पॉसिबल, ओनली पॉजिटिव इज पॉसिबल, रेजिस्टेंस x इज एन इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हियर, सो रेजिस्टेंस इज नॉट नेगेटिव, resistance is always considered as a positive right now, so here we write the answer, x is equal to 1 plus √3 ohm,
negative is not possible, so you write the answer in only in terms of positive. So because 1 minus root 3, okay, अगर इसको आपको लिखना है तो root 3 means 1.73 something, so 1.73 plus 1, तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली x is equal to 2.73 ohm. So this is the only equivalence resistance. Now you want to finding out the current in this circuit. ओके तो इस पूरे नेटवर्क की जगह पे आप सिर्फ x रख दो. You just replace the whole networks by the x. So what is your final circuit? So your circuit is like this. This point is A, this point is B, and here only one resistance is connected. Which one? X, and this is it. Okay. Now here one battery is connected with internal resistance R. ऐसे तो ये तो सिंपल नेटवर्क है ना. यहाँ पे आपको R की जगह पे क्या रख दिया आपने? X रख दिया. ओके सो व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? सो सिंपल आंसर हो जाएगा, अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो ये तो सेल की सर्किट हुई ना. सो व्हाट इज दिस करंट I? सो करंट आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R. दैट इज अ सिंपल इक्वेशन. तो इसका आंसर होगा एप्सिलॉन अपॉन R की जगह पे X रखना है तो X प्लस R. तो एप्सिलॉन गिवन है 12 वोल्ट. ओके X आपने फाइंड किया हुआ है और R गिवन है, तो सभी वैल्यू यहाँ पे रखो. आपको करंट जो है वो एम्पियर में मिल जाएगा. जो रिमेनिंग कैलकुलेशन है वो आपको होमवर्क में करने. ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको पूछा है तो आप इस तरह से सॉल्व करना है. फिर से मतलब ऐसा कोई भी इनफाइनाइट लैडर का प्रॉब्लम है, then how you solve this type of problem? Here you just consider the equivalence resistance supposed to be X. इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आप X मान के चलो और इसमें एक सिमेट्रिकल लूप रखो. बाकी सभी जगह सभी लूप को निकाल के उसकी जगह पे ऐसे X रख दो. एक लूप रखनी है. देखो यहाँ से मैंने काफी सारी लूप्स है, यहाँ पे सिमेट्रिकल लूप रखनी है. ये सिमेट्री है, ये सिमेट्री, ये सिमेट्री, ये सिमेट्री. ठीक है, तो इसको निकाल दिया और उसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया? X रख दिया. क्लियर है. और इसका ऐसे आप सिंप्लीफाई करो, आर ए बी का इक्वेशन फाइंड करो. तो आर ए बी का इक्वेशन कुछ ऐसा हुआ और आर ए बी की जगह पे फिर से आपको क्या रखना है? X ही रखना है. ठीक है, मैंने एक लूप रखा या फिर आप एक लूप रखते हो या नहीं रखते हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. फिर से बोल रहा हूँ, you consider the one loop additional, you just added a one loop, you are subtract the one loop, no problem, because this is a infinite, there is a infinite number of resistance. ठीक है, तो उससे कोई चेंज नहीं होता है सर्किट में. तो पूरा एग्जांपल नोट कर लो आपकी बुक्स में. Okay guys, let's come to this next infinite ladder problem. This type of ladder is given to us up to the infinite network. Okay, and we have to find here, thus find the resistance, equivalence resistance between these 2 points A and B. Suppose ऐसा कोई questions है and we have to find this resistance. Then what we are doing here, see, so first you find the symmetrical loop here, one symmetrical loop. So see 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसा कुछ होगा. तो आप इस पूरे नेटवर्क को रिप्लेस करो, एक लूप को रखो. You just replace the whole network by the one equivalence resistance and you just add one loop here. So this loop is as it is. You just break the circuit wherever the symmetry starts. So यहाँ पे 1 के बाद 1 आता है, 2 के बाद 2 आता है, तो फिर सिमेट्री यहाँ पे हुई. देखो क्लियर है. सो ए पॉइंट आपका हो गया C और ए पॉइंट आपका हो गया D. ए मानो या फिर ए मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, दोनों पॉइंट सेम ही है. ए भी ए मानो या फिर ए पॉइंट, दोनों सी सेम ही है. Then this whole network is replaced by the one single equivalence resistance. So let's consider, suppose this equivalence resistance RAB is equal to X. ऐसा मान के चलो कि X है. Then what you have to find here? अगर X है तो X फाइंड करना है. If equivalence resistance suppose X है तो X फाइंड करना है. तो फिर ये पूरे नेटवर्क को रिप्लेस करो तो आपका न्यू नेटवर्क कुछ ऐसा हो जाएगा. देखो the C and this one is D. So here C and the D, here one resistance is replaced. Which one? X. So पूरा नेटवर्क X से रिप्लेस हो गया. ओके, यू जस्ट ड्रॉ द रिमेनिंग एज इट इज. सी डी के राइट हैंड साइड ऐसे ही ड्रॉ कर लो. तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है. ठीक है, तो C के C और D के साथ 1 और 2 ज्वाइन है. तो फिर यहाँ पे 1 ओम है और यहाँ पे 2 ओम है और यहाँ पे 1 ओम है. ए पॉइंट से
बी पॉइंट्स, ठीक है। तो आप मतलब पूरे नेटवर्क को एक्स से रिप्लेस किया, ए लूप को ऐसे ही रख दिया। तो जो 2 ओम है वो सी और डी के साथ कनेक्ट है, सी के साथ और डी के साथ कनेक्ट है। आप यहाँ पे भी सी रखो, प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी रख सकते हो सी एंड डी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम ही है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी रखो, यहाँ पे भी रखो, कहीं पे भी रखो। और ऐसा कुछ क्वेश्चन है और सी और ए के बीच 1 है, सी और ए के बीच 1 हुआ और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ऐसे एज इट इज। नाउ व्हाट इज द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस? एक्स है। तो अगर इन दोनों के बीच का एक्सपेरिमेंट रेजिस्टेंस है तो ए पैरेलल में हुआ, उसके बाद ए सीरीज में होगा, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा इसमें? पैरेलल, दिस इज इन पैरेलल। सो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर पैरेलल? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसा कुछ है। सो R1 की जगह पे x रखो, R2 की जगह पे 2 रखो, सो 2x अपॉन x प्लस 2, मतलब इतना रेजिस्टेंस ये हो गया। तो इसका इक्विवेलेंस फिर से क्या हो जाएगा? देखो, व्हाट इज द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस? नाउ दिस इन न्यू केस, दिस होल इज रिप्लेस्ड बाय दिस, ओके। सो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। यहाँ पे 1 तो ऐसे ही है, तो 1 को ऐसे ही रख दो। सी पॉइंट यहाँ पे, डी पॉइंट, डी और बी के बीच में कुछ नहीं है, तो ऐसे ही रख दो डी और बी। नाउ द रेजिस्टेंस बिटवीन सी डी इज दिस, इट इज रिप्लेस्ड बाय दिस वन। सो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसका आंसर होगा 2x अपॉन x प्लस 2, ओके। सो व्हाट इज दिस RAB? नाउ दिस टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, सी, only in single line. So these two resistors are in series. Then how you solve out this problem? So RAB is equal to, in series always the summation of resistance. So 1 plus this, so 1 plus 2x upon x plus 2, 2x upon x plus 2। इसका सिंप्लीफाई करने के लिए RAB की जगह पे क्या रखना है आपको? x। तो RAB की जगह पे आप इज इक्वल टू x रख दो। इसका सिंप्लीफाई करो, चलो। तो x प्लस 2, इसको यहाँ पे ले लो, इसको यहाँ पे ले लो, प्लस 2x इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 प्लस 2x, ऐसा कुछ हो गया। देन इफ एनीथिंग इज कैंसल देन कैंसल इट एंड राइट द रिमेनिंग एज इट इज। 2x कैंसल, just take this terms on right hand side, it becomes negative। so आंसर हो गया x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a हुआ 1, b हुआ -1, c हुआ -2, है ना। the coefficient of x square a, coefficient of b x, it's a b, so b is equal to -1 and the constant terms is c, so c is equal to -2। so x का आंसर होगा -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यहाँ पे आपका जो सभी वैल्यू रखो, x फाइंड करो, ठीक है, ओहम में होगा। और यहाँ पे आपको नेगेटिव आंसर नहीं रखना है। जो भी आंसर आपको, यहाँ पे 2 आंसर मिलेंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो दोनों में से जो पॉजिटिव आंसर है वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। सो यू जस्ट राइट द पॉजिटिव आंसर ओनली। टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, ओके। और आप जब कैलकुलेट करोगे पूरा आंसर आप घर पे होमवर्क में, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2 Ω। इसका आंसर क्या होगा? 2 Ω। मीन्स दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस फुल नेटवर्क इज अ 2 Ω, ओके। सो नोट करो इस एग्जांपल को बुक्स में। और गाइस लेट्स कम टू दिस नेक्स्ट थ्योरी, करंट डिवीजन इन अ पैरेलल रेजिस्टेंस। You must be remember this theory because this is helpful in a different example. Whenever the parallel resistance is given to you and you want a current, then you just using this equation you directly find the answer within a one step, okay। मतलब आपको इसका जो भी रिजल्ट मिलता है आपको याद रखना है, उससे आपको डायरेक्टली कोई भी रेजिस्टेंस में, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है, जो डिवीजन होता है वो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। Let's consider, suppose this type of two resistors R1 and R2 connected in parallel and the total resistance entered into total current entered into this circuit is what? I. So out of this I, let's take this some current is flow through here I1 and some current is flow through here is supposed to I2. I1 is a current flow through the R1 and I2 is a current flow through the R2. Okay, now you apply this potential difference here, whatever the potential, suppose here this applied the potential difference is V between this two between this connection, okay। Then potential difference in parallel resistance is always same, as we know potential difference in parallel resistance is always same. What is this potential difference V? So here we write down the simple case, potential difference
V is equal to I into R equivalence. Yes or no? What is the total current flow through it? I. What is the equivalence resistance? R equivalence. Then what is V? Whatever the potential difference they applied here, that's one. So here we write down simple answer. V is equal to I. What is the R equivalence here? That's R1 R2 upon R1 plus R2. I am telling to all of you in a previous session, you remember this equation for parallel resistance. पैरेलल रेजिस्टेंस के आपको इक्वेशन याद होना ही चाहिए कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंस इतना होता है, ठीक है। तो अगर I1 फाइंड करना है, I1, तो I1 का फॉर्मूला ओहम्स लॉ से क्या होगा? I1 इज इक्वल टू वॉट एवर द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है, V is equal to IR. Then what is the current in this first resistance? So here you write down the answer. I1 is equal to what? V upon R1. What is I1? V upon R1. So यहाँ से फाइंड करो V and R1 को यहाँ पे ले लो, V upon R1. तो यहाँ पे बाकी क्या रहेगा? देखो R1 अगर यहाँ पे आया तो R2 upon R1 plus R2. This is the current in a first resistance. Similar way अगर आपको I2 चाहिए तो फिर V upon R2 हो जाएगा, तो यहाँ से R2 यहाँ पे ले लो, तो V upon R2 ले लो, तो V upon R2 इससे होगा, तो आंसर क्या रहेगा? R1 upon R1 plus R2. मतलब कि I जो है रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। देखो I1 है तो R2 आया, I2 है तो R1 आया। ओके, ऐसे ही आपको कोई भी रेजिस्टेंस दिया हुआ तो आपको अपोजिट लिखना है। अगर आप इसमें करंट फाइंड कर रहे हो तो रेजिस्टेंस ये लिखना है, इसमें करंट फाइंड कर दो, रेजिस्टेंस ये लिखना है। देखो I1 है तो R2 हुआ, बाकी तो सेम ही। देखो I upon R1 plus R2, I upon R1 plus R2, बोथ इन द सेम इन बोथ केस। तो फिर आपको यही पे याद रखना है कि I1 है तो R2 होगा, I2 है तो R1 होगा। मतलब जो भी ब्रांच में आप करंट लिख रहे हो तो उसका अपोजिट लिखना है। Whatever you write the current, you just write this resistance which is opposite of this one. मतलब उसके साथ जो भी दूसरा रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू वहां पे लिखनी। और I क्या है? टोटल करंट एंटर इनटू द कॉम्बिनेशन। हियर I is what? In this equation, what is the I? So I is equal to total current entered into the combination. You must be remember. Okay, now the special case, if R1 and R2 both are same, then what? Then this both current is given as like this. See, if R1 is equal to R2 is equal to R, then what is I1? I1 फाइंड करना है तो IR upon R2R, R2 की जगह पे भी R रखो, मतलब तो IR upon 2R, RR कैंसल तो I/2 हो जाएगा। इसमें फाइंड करो तो IR upon 2R, तो RR कैंसल, उसमें भी I/2 हो जाएगा। मतलब कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I/2। अगर ऐसा है तो ऐसे n रेजिस्टेंस सेम कनेक्ट किए हुए तो अगर दो कनेक्ट है तो I/2 हुआ, दो कनेक्ट किया हुआ तो कितना हुआ? I/2। तो फिर n रेजिस्टेंस कनेक्ट किए ऐसे तो इक्वल है, ओनली दिस इक्वेशन इज अप्लाइड फॉर इक्वल रेजिस्टेंस। ओके, सो सिमिलरली इफ n equal resistances are connected in parallel, then current pass through it is given by I1 is equal to I2 is equal to I3 and this is same. What is the answer? I/n। मतलब सभी में से सेम करंट फ्लो होने वाला कितना? I/n। दो रेजिस्टेंस है तो I/2, 3 रेजिस्टेंस है तो I/3, 4 रेजिस्टेंस है तो I/4। ऐसा वेयर अगेन I is what? टोटल करंट एंटर्ड इनटू द कॉम्बिनेशन। ओके, मतलब इसकी अगर आप फिगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो इजीली आप ऐसे फिगर बना सकते हैं। देखो तो एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है और ऐसे आपने कनेक्ट किया, ठीक है। मतलब n रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किए, कितने? n रेजिस्टेंस, ABR है, ABR है, ABR, ऐसे n रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में कनेक्ट किया। कितना करंट सर्किट में एंटर होता है? अब मान लो कि सर्किट में
I करंट एंटर होता है और I करंट लीव होता है, तो ये N डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसमें से कितना करंट जाने वाला है I बाय N, इसमें से भी कितना करंट जाने वाला I बाय N, इसमें से भी I। डू यू अंडरस्टैंड? सो बाय दिस वे यू जस्ट राइट द आंसर इन दिस टर्म। मतलब मोस्ट ऑफ दी यहीं तक आने वाला है। जो भी आपको एग्जाम्पल पूछेगा उसमें दो ही रेजिस्टेंस हो गए, तो I1 I2 अगर डिफरेंट रेजिस्टेंस है तो इससे करना है, सेम रेजिस्टेंस है तो इससे करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आप पूरी थ्योरी को अप्लाई करो। सो दिस टाइप ऑफ फिगर इज गिवन टू अस, सी हियर दिस situation is given to us and we have to solve out this problem. Find the current in 3 ohm, मतलब 3 ohm कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसमें करंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर इसमें करंट फाइंड करना है तो आप एक मान लो कि ऐसे पूरी सर्किट में कितना करंट फ्लो होने वाला है, I, कितना फ्लो होने वाला करंट I, तो पहले I ही फाइंड कर लेते हैं। तो I क्या हो जाएगा इसमें, उसमें उसके बाद इसमें कुछ डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे टोटल करंट इन द सर्किट, क्योंकि यहाँ पे तो पहले तो टोटल करंट ही चाहिए। देखो टोटल करंट एंटर इनटू द कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन में टोटल करंट क्या हो जाएगा, तो I टोटल करंट, तो I इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल कितना है 12 अपॉन R इक्विवेलेंस, ऐसा होगा 12 है, और इसका सपोज मान लो कि R इक्विवेलेंस है, तो R इक्विवेलेंस पहले फाइंड करना होगा। तो इसका R इक्विवेलेंस मान लो, आप सभी को कुछ ना कुछ नाम दे दो, चलो R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, ऐसे सब कुछ को हम ऐसे कुछ नेम से चलते हैं। तो इसका इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, हमें तो टोटल इक्विवेलेंस है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इतना ही, तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा R इक्विवेलेंस कौन सा है, 3 और 4 है, तो इसको ऐसा इंडिकेट करते हैं R इक्विवेलेंस 3 4। अगर यही रेजिस्टेंस का आपको R इक्विवेलेंस चाहिए तो इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, R इक्विवेलेंस 3 4, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज अ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ राइटिंग दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। तो दोनों पैरेलल में आंसर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो R3 R4 अपॉन समेशन R3 प्लस R4, क्या हो जाएगा R3 R4, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 9, है ना। तो 3 3 जा 9 एंड 3, मतलब इसका रेजिस्टेंस हुआ 2 ओम, इसका आंसर क्या होगा 2 ओम। 6 3 जा 18, 18 बाई 9 2 ओम। A2 है A4 है, तो इसका 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। A2 है A4 है, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। तो A हुआ 6 पूरा, तो ये पूरा नेटवर्क हो जाएगा 6। चलो लिख देते हैं यहाँ पे, ये पूरा नेटवर्क जो है, पूरा नेटवर्क इतना, उसका आंसर क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंस कौन सा है 134। सो 134 इज इक्वल टू 4 ओम प्लस 2 ओम, कितना हो जाएगा 6 ओम। ये शॉर्टकट्स में लिखना सीखना है, अदरवाइज एमसीक्यू में आप काफी सारे प्रॉब्लम करोगे। अगर ऐसा प्रॉब्लम बोर्ड की थ्योरी में पूछते हैं तो लास्ट टाइम हमने जैसे सॉल्व किया वैसे पूरा लिखना है, लेकिन यही एग्जाम्पल अगर एमसीक्यू में सॉल्व करना है तो इसी तरह से आपको लिखना आना चाहिए। तो ये आप जो प्रॉब्लम है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मतलब काफ़ी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली ऐसे ही लिखो। अब ये पूरा हो जाएगा, तो ए कितना हुआ 6 और ए कितना है 6। 6 और 6 किस में है, पैरेलल में। देखो यहाँ पे ए पॉइंट्स को आप ले लो, सपोज ए पॉइंट्स ए है, ए पॉइंट्स बी है, तो ए बी के बीच में ऊपर कितना है 6, नीचे भी कितना है 6। तो पूरी सर्किट कुछ ऐसी हो जाएगी, ए पॉइंट्स बी पॉइंट्स, ए के बीच में ए ऊपर का कितना आया 6 ओम आया, और नीचे का जो ब्लैक से ड्रॉ किया हुआ है वो भी कितना है R2 6 ओम है, और इसका नाम हमने क्या रखा R इक्विवेलेंस 134। और ये पूरा कनेक्शन जो है वो ऐसे बैटरी के साथ कनेक्टेड है। कितनी वोल्ट की बैटरी है 12 वोल्ट का। दैट इज आवर सिचुएशन, न्यू कंडीशन। नाउ दिस टू आर इन पैरेलल। इफ इक्वल रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, व्हाट इज द आंसर? If equal resistance are in parallel, then R by N. Right now, how many resistance you have? 2. Then R by 2 is our answer. Then what is R? 6 ohm, 6 ohm. तो फिर इसका पूरा equivalence resistance कितना हो जाएगा? The equivalence resistance of this one means whole circuit का, तो R equivalence इसमें हो जाएगा, R equivalence दोनों ही सेम है, तो 6/2 आंसर होगा 3 ohm।
मतलब पूरी सर्किट का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है 3 ओम, यहाँ से कितना करंट जा रहा है I, जो हमें फाइंड करना है। तो I इज इक्वल टू 12 अपॉन R इक्विवेलेंस 3, मतलब कि कितना करंट होगा 4 एम्पियर, मतलब 4 एम्पियर करंट इज फ्लो थ्रू द होल सर्किट। पूरी सर्किट में से टोटल करंट कितना फ्लो होने वाला है 4 एम्पियर। लेकिन आपको कहाँ पे चाहिए, फाइंड द करंट इन 3 ओम, मतलब यहाँ पे ही करंट चाहिए। तो पहले इसमें देख लेते हैं कितना करंट एंटर होता है, तो दोनों ही सेम है। तो ये सेकेंड थियरी यूज करो, इफ R1 इज इक्वल टू R2 देन द I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I/2। मतलब इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, हाउ मच करंट फ्लो थ्रू दिस वन, इसमें से यहाँ से कितना करंट फ्लो होने वाला है, जो भी एंटर उसका हाफ, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा I/2, यहाँ पे भी कितना होगा I/2। अगर इस सर्किट में आप देखते हो तो इस 6 ओम में से कितना जा रहा है I/2, इस 4 ओम और इसमें से कितना जा रहा है I/2, मतलब यहाँ पे जो करंट है I/2 और यहाँ पे भी करंट है I/2। क्लियर है, I नॉन वैल्यू है, I कैसी वैल्यू है नॉन। तो इसमें से आप मान लो कि 3 ओम का फाइंड करना है, उसमें से आप करंट मान लो कि I1 जा रहा है, 6 ओम में से अगर फाइंड करना है तो मान लो करंट कितना जा रहा है I2, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो ये पूरी सर्किट को भूल जाओ, सिर्फ इतनी सर्किट को अलग से याद रखो। तो अगर वही सर्किट आप यहाँ पे बना रहे हो तो आंसर क्या होगा, देखो अभी मैं बना रहा हूं लेकिन बाद में आपको बनानी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है R3 इज इक्वल टू 3 ओम, यहाँ पे है R4 इज इक्वल टू 6 ओम। कितना करंट एंटर हो रहा है, हाउ मच I/2, हाउ मच करंट इज एंटर हियर I/2। इसमें कितना करंट आपने लिया है I1, इसमें कितना लिया है I2। आपको फाइंड करना है 3, मतलब I1 फाइंड करना है, लेकिन I2 भी फाइंड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ यूज दिस एग्जैक्टली सेम, नाउ दिस इज एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे करंट I एंटर हो रहा था, यहाँ पे I/2 एंटर, तो I की जगह पे आपको I/2 रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इक्वेशन तो रेडीमेड ही है, I1 इज इक्वल टू IR2 अपॉन R1 प्लस R2, I2 इज इक्वल टू IR1 अपॉन R1 प्लस R2। तो आप I1 का इक्वेशन इसमें लिखना सीखो। चलो, आपको इक्वेशन को कैसे यूज करना वो सीखना है, इक्वेशन याद रखना ऐसा नहीं है। इस इक्वेशन को इस सिचुएशन में अप्लाई करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो I1 इज इक्वल टू IR2 अपॉन R1 प्लस R2। तो I मतलब I की जगह पे आपका क्या है I/2, तो यहाँ पे I/2, R2 मतलब जिस रेजिस्टेंस को हमें करंट आप कंसीडर कर रहे हो उसके अपोजिट रेजिस्टेंस। तो आपने करंट I1 किस में लिखा है 3 में, तो यहाँ पे A आएगा, तो I/2 इंटू E कौन सा है R4, सो R4 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब दोनों रेजिस्टेंस का समेशन, तो अपॉन R3 प्लस R4, ठीक है। तो आपको इस इक्वेशन को अप्लाई करना सीखना है इसमें। तो आप इस तरह से आप इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट? दिस इज जस्ट इक्वेशन, बट व्हेनेवर व्हाटएवर टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन टू यू, यू जस्ट राइट द आंसर इन दिस फॉर्मेट। नाउ पुट द ऑल वैल्यूज, ओके। यहाँ पे व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ I 4, सो 4/2 2 हो गया, सो दैट इज व्हाट 2 into what is the value of R4? R4 is equal to 6, so into 6 upon R3 plus R4, so 3 plus 6, 3 plus 6 कितना हुआ, 3 plus 6 9, so that's a 9, 3 2s are and 3 3s are, so that's answer is what I1 is equal to 4/3 एम्पियर, ठीक है। क्लियर है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो 4/3 एम्पियर, ओके। नाउ I2 अगर फाइंड करना है तो I2 भी यहां पे फाइंड करके देखते हैं। चलो, I2 में भी ऐसे इक्वेशन लिखना है। I2 में क्या है, देखो I2 इज इक्वल टू IR1 अपॉन R1 प्लस R2, IR1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो I की जगह पे कितना एंटर हो रहा है I/2, तो यहां पे लिखो I/2। R1 मतलब जिसमें करंट जा रहा है उसका अपोजिट, यहाँ पे किसमें करंट फाइंड करना है, यहाँ पे, तो फिर आपको अपोजिट कौन सा है R3, तो यहाँ पे लिखना है R3 अपॉन दोनों का समेशन, तो फिर R3 प्लस R4 इज इक्वल टू, वैल्यू रखो यहाँ पे I4 है तो 4/2 कितना हुआ 2, R3 कितना है 3, सो ये हुआ 3 अपॉन, इसका सम करो, चलो
R3 प्लस R4 टोटल हुआ 9, 3 3 जा 9, तो इसमें से आपको आंसर क्या मिल जाएगा, देखो व्हाट इज योर फाइनल आंसर। दूसरी पेन से लिखते हैं, अदरवाइज ये मिक्सअप हो जाएगा। तो फिर I2 इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर। पूछा नहीं है लेकिन ऐसे आप फाइंड कर सकते हो, और इसी को आपको यहाँ पे सीखना था इसलिए हमने सॉल्व किया। डू यू अंडरस्टैंड? सी इसका सम करो 4/3 प्लस 2/3। अगर इसका सम करोगे टोटल I/2 जितना होना चाहिए। I/2 की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर है, तो इसका सम करो 2 एम्पियर होना चाहिए। तो 4/3 प्लस 2/3, 4/3, 4 प्लस 2 6, 6/3 2 एम्पियर हो गया। तो आप इस तरह से एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा एग्जाम्पल और थ्योरी दोनों आपकी बुक्स में नोट कर लो। Okay, in this session we discuss about the वायर बैंड इनटू द सर्कल, मतलब इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ही फाइंड करना है, लेकिन ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। तो आप ये पूरी थ्योरी है आपकी बुक्स में नोट में लिखे थे। लास्ट जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था वो भी नोट में लिखना था, ये भी नोट में ही लिखना है कि अगर किसी वायर को अगर सर्कल में बैंड किया है और कोई 2 पॉइंट से बीच के आपको इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस चाहिए, देन हाउ यू जस्ट गेट इट। ओके, आप हमें यहाँ जो भी इक्वेशन डिराइव करने वाले उसको आपको डायरेक्टली इक्वेशन के मतलब डायरेक्टली यूज़ करना है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली इक्वेशन को ही अप्लाई करना सीखना है और कुछ नहीं करना है। तो फिर ऐसा कुछ वायर है दस हैविंग अ लेंथ L एंड एरिया इज व्हाट A। तो अगर इसका रेजिस्टेंस आप फाइंड करोगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो अगर R मान लो कि वायर का रेजिस्टेंस R है तो इसका आंसर आएगा रो L अपॉन A, एज वी नो वेयर रो इज अ रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर। हियर यू कंसिडर रो इज इक्वल टू व्हाट, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। नाउ दिस वायर इज बैंड इनटू द सर्कल लाइक दिस एंड नाउ यू वांट द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। आपको अभी इसमें क्या फाइंड करना है, A और B के बीच का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो A और B के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ऐसा मान लो ऐसा कुछ है। तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे AB वायर जो A है और जो AB वायर A है उस वो दोनों पैरेलल कंडीशन में होंगे। ओके, नाउ कंसिडर सपोज दिस वन इज R1 and here it is what, R2. Then R1 and R2 is in parallel condition in this new case. Initially the single wire having a resistance R. Now you connect this you connect the battery between these two A and B points, then that's R1 and R2 is in a parallel condition. Okay, so here we apply this relation. And what is this L? This whole wire is bent into the circle. So actually length of wire R is equal to क्या हो जाएगा, सॉरी L is equal to क्या हो जाएगा, 2 पाई। आप इसकी रेडियस जो है उसको सभी A मान लो, है ना। इसकी रेडियस को R इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि R ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया हुआ है, और स्मॉल r मान लो। चलो आपकी इसकी रेडियस को स्मॉल r मान लो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई R। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ व्हाट इज RAB, R इक्विवेलेंस। सो हियर R इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो RAB इज इक्वल टू दो पैरेलल रेजिस्टेंस, सो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वहां पे आपको R1 क्या रखना है, देखो R1 आपका हो जाएगा, इसकी लेंथ आप मान लो L1, इसकी लेंथ आप मान लो L2। तो L1 और L2 का आंसर क्या रहेगा, देखो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, सो आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, सो आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। सो L1 आप इस एंगल को मान लो θ1 और इस एंगल को मान लो θ2 इन रेडियन, θ1 एंड θ2 इन रेडियन। ओके, सो L1 इज इक्वल टू θ1 into radius, L2 is equal to θ2 into radius, where θ1 and θ2 in radian, θ1 and θ2 in radian। अगर आपने ऐसा माना है तो फिर R1 क्या होगा, तो ρ1 L1 अपॉन एरिया। एरिया तो सेम ही रहेगा, जो इसमें है वो इसमें रहेगा, एरिया कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, तो ऐसे ही होगा। R2 क्या हो जाएगा, सॉरी ρ1 नहीं, रो माय मिस्टेक, क्योंकि वायर सेम ही है तो रो सेम रहेगा। तो रो इंटू L2 अपॉन है, तो R1 और R2 की वैल्यू, ये सभी वैल्यू अगर आप इसमें रखोगे, उस वैल्यू को भी इसमें रखोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ रिजल्ट ही याद रखना है। तो फिर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हो जाएगा RAB इज इक्वल टू R इंटू θ1 अपॉन 2 पाई इंटू
थीटा 2/2 वेयर यू मस्ट बी रिमेंबर थीटा इज इन रेडियन। आपका थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में ही होना चाहिए, तो ये इक्वेशन अप्लाई करना, नहीं तो नहीं करना। मतलब ये सभी वैल्यू इसमें रखोगे तो फाइनल आपको रिजल्ट ऐसा मिलेगा और आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो किस तरह का क्वेश्चन आता है, देखो इस क्वेश्चन को यूज कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ अ वायर ऑफ 12 ओम रेजिस्टेंस, मतलब वायर का रेजिस्टेंस है उसको आपने क्या बोला था? आर। तो ए जो दिया हुआ है वो क्या है? आपका आर है। 12 ओम रेजिस्टेंस इज बैंड इनटू द सर्कल एज शोन इन फिगर, मतलब ऐसे कुछ सर्कल में इसको बैंड किया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस 12 ओम है। देन फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, तो आपका ये दो पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए। तो मतलब आप यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर रहे हो, आप इन दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपको इसमें R1 मान लो, इसको आप R2 मान लो, ऐसा ही है कुछ कंडीशन तो ऐसी है। तो ए जो एंगल है ये θ1 हो गया और ए जो एंगल है आपका वो θ2 हो गया। तो इफ यू सी θ1 here right angle is given, so what is your answer here in this case? θ1 is equal to π/2 and θ2 is equal to what? 3π/2 गिवन ही है, तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो। तो फिर आपका आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो आंसर हो जाएगा आर ए बी इज इक्वल टू आर इंटू θ1/2π θ2/2π। तो वैल्यू रखो सब भी, ऐसा इक्वेशन है देखो। तो R कितना है? 12, सो यहाँ पे रख दो 12 एंड θ1 इज अ π/2, सो π/2/2π। θ2 3π/2, सो 3π/2/2π। सिंप्लीफाई करो, पाई कैंसल पाई कैंसल पाई कैंसल पाई कैंसल, सो 12 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 1/4। यहाँ पे 2 इंटू 2 फिर मतलब 3/4। ठीक है, सो सिंप्लीफाई करो तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। 3 इंटू 2 3 इंटू 3 9, सो 9/4 दैट इज अवर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आप इस तरह से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें से करंट भी फाइंड कर सकते हो, ऐसा नहीं कर फाइंड कर सकते। यहाँ से करंट सपोज I1 जा रहा है, यहाँ से करंट सपोज I2 जा रहा है, दोनों में पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, दोनों में पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो फिर आप फिर से वही इक्वेशन यूज करो जो पैरेलल में अब लास्ट सेशन में किया था। तो इसमें करंट का इक्वेशन तो वही रहेगा इस तरह से, I1 इज इक्वल टोटल करंट, आप सपोज इसमें कितना एंटर कर रहे हो? I एंटर कर रहे हो, तो फिर I R2/R1 प्लस R2। अगर एक बार ये रेजिस्टेंस मिल गया और थीटा आपके पास है, टोटल रेजिस्टेंस है, तो इस इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हो R1 इज इक्वल टू ρL/A1 ISF। ओके, तो इससे आप सभी वैल्यू रख के इसमें इसको R के टर्म में कन्वर्ट कर दो। आप जो R1 है उसको सभी वैल्यू रखो और R के टर्म में कन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। चलो एक रेजिस्टेंस को फाइंड करके दिखा दूँ। R1 इज इक्वल टू रो, L1 की जगह पे क्या रखना है? θ1 इंटू R/A, ऐसा ही कुछ है। और इसमें R की जगह पे आप रख दो L/2π, R की जगह पे क्या रख दो? L/2π। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? देखो इज इक्वल टू रो इंटू R की जगह पे रखो L/2π/A इंटू θ1, ऐसे ही देखो ρL/A की जगह पे R रख दो, तो फिर आपका R1 R में कन्वर्ट हो जाएगा, ρL/A इंटू θ1/2π। डू यू अंडरस्टैंड? इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो इस इक्वेशन को रखो, आपका आंसर जो भी है R1 के मिल जाएगा। तो फिर I1 ऐसे मिलेगा, I2 कैसे मिलेगा? I2 इज इक्वल टू IR1/R1 प्लस R2। कोई भी इक्वेशन इसमें आपको दिया है तो सभी इक्वेशन पैरेलल वाला यूज कर सकते हो, आपका फाइनल आंसर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, चलो पूरा एग्जाम्पल नोट कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं।